पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आपके सानिध्य को हम आराधना करते हैं। हमारे साथ रहकर आज का धर्म शिक्षा का प्रभाव हमारे जीवन में होने के लिए कृपा कर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु बच्चों, हम आज के धर्म शिक्षण में प्रभु की 10वीं आज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? हाय बच्चों, मुक्ति की राह पर अपनी यात्रा में हम प्रभु की आखिरी आज्ञा तक पहुंच गए हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11, जिस पर हक नहीं उसे मत चाहना। इस आज्ञा के बारे में पुराने विधान से एक कहानी हम देखेंगे। समरिया में नाबोत नामक एक व्यक्ति रहता था। उन दिनों आहाब समरिया का राजा था। राजमहल के समीप नाबोत की एक दागबारी थी। वो बहुत बढ़िया दागबारी थी। राजा ने उसको अपनाना चाहा, लेकिन अपने पुरखों की विरासत राजा को देने के लिए नाबोत तैयार नहीं था। ये जानकर राजा की पत्नी इज़ाबेल ने नाबोत पर ईश निंदा का झूठा अभियोग लगाया और नाबोत पत्थरों से मारा गया। राजा ने दागबारी पर कब्जा किया। नाबोत की पुकार ईश्वर के सामने पहुंची। न्यायी ईश्वर ने नबी एलिया को राजा के पास भेजा। नबी द्वारा ईश्वर ने कहा, आहाब, तुमने नाबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में कर ली। जहां कुत्ते ने नाबोत का रक्त चाटा, वहां वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। बच्चों, हम ये पढ़ेंगे राजाओं के ग्रंथ में, पहला ग्रंथ में अध्याय 21 वाक्य 19 में। यह दंड राजा आहाब को अपने लालच के कारण प्राप्त हुआ। अब हम एक वीडियो में ये कहानी देखेंगे। The ruler of Israel was visiting his summer palace in Jezreel. As he looked out at his garden, he admired all the beautiful things he possessed. Where in the world was a garden as lovely as his? A garden to be treasured, and it was all his. As the king stood there admiring his garden, he tried to think of some way to add to its beauty. When he noticed something. Next to his own garden, on the other side of the wall, was a fine vineyard. The vines were heavy with fruit, and the king could see that the land was good. King Ahab wanted that vineyard. It was just what he needed to enlarge his garden. He could tear out the grape vines and plant whatever he wanted. Excited by his new discovery, the king went to see the owner of the vineyard, a man by the name of Naboth. The king told Naboth how he wanted the vineyard because it was near his own garden, and he was ready to buy it at whatever price the land was worth. To Naboth, the land was something to be guarded with care because God had given it to his family as their inheritance. According to the law, Naboth's inheritance was his own. Not even the king could take it away. The vineyard was something the king wanted and couldn't have. And that made the king very angry. How dared Naboth refuse him? He was the king, and he was willing to pay any price for the vineyard. When Ahab returned to his court in Samaria, he thought about his disappointment. The more he thought about it, the more miserable he became. All his great palaces, his riches, and his power meant nothing to Ahab. What was the use of being king if he couldn't get what he wanted? King Ahab was so unhappy he went to bed and he wouldn't talk to anyone. The servants became alarmed when the king lost his appetite and refused to eat, so they decided to go tell the queen. Queen Jezebel was a very cruel, selfish, and wicked woman. She was very powerful. King Ahab ruled Israel, but Queen Jezebel ruled the king. When the servants reported that the king was sad and wouldn't eat, Queen Jezebel prepared to take care of the matter right away. Is that all that's wrong? She laughed as she soothed the king. Get up, eat something, and be happy. I will get you the vineyard. So Queen Jezebel wrote letters to the rulers of Jezreel, the city where Naboth lived, which was quite a distance from the king's palace in Samaria. She signed the letters with the king's name, and stamped them with his seal, so the rulers of the city would be forced to obey.
The letters commanded that Naboth be brought before the people and that 2 wicked men be found who would swear that Naboth had spoken against God and the king. And the letter went on to say, "Then carry him out and stone him." With the king's signature on the letter and the king's seal, the rulers had no choice but follow orders. At Naboth's trial, he tried to tell the people he was a God-fearing man and that he would never speak against God or the king. And that he had done nothing wrong. But the people did not believe him. Naboth was carried outside the city walls and stoned to death. When Queen Jezebel received the report that Naboth was dead, she said to Ahab, "Go take possession of the vineyard that Naboth refused to sell you, for Naboth is no more." Ahab was delighted with his clever queen. She not only gave him what he wanted, but now it wouldn't cost him anything. King Ahab was excited at the thought of standing in the vineyard and saying, "It's mine, all mine." With Naboth dead, there was no one to stand in the king's way. No one, that is, except God. Ahab had forgotten God, but God hadn't forgotten Ahab. Elijah was a great prophet, and God spoke to him and told him to meet Ahab, king of Israel, in the vineyard of Naboth. The Lord told Elijah what to say to the wicked king. King Ahab stood in the vineyard. But what he saw made his heart stand still. There stood Elijah the prophet of God. Ahab cried out, "My enemy, you have found me." Elijah answered, "I have found you because you have sold yourself to do evil in the sight of the Lord." And Ahab heard from the lips of Elijah the terrible price he would pay for his sin. The king's heart melted with fear as he heard that his whole house would be wiped out, himself, his queen, all his sons, and there would be no one left to carry on his name. तो बच्चों, हम लालच और उनके लिए ईश्वर से दिए हुए दंड देखे हैं। हमारा ईश्वर न्यायकर्ता ईश्वर है। पुराने विधान की इस प्रकार की घटनाओं में हम उस ईश्वर को देखते हैं जो न्याय दिलाने में सदैव तत्पर है, जो न्याय से वंचित है और शोषण के शिकार है। उन लोगों का परिपालक और संरक्षक है प्रभु ईश्वर। न्यायी ईश्वर ने यह चाहा कि अपनी प्रिय संतान इस्राएली जनता भी धार्मिक बने, लेकिन ईश्वर ने यह देखा कि जिन्हें उसने स्वयं अपने अगाध प्रेम से जन्म दिया था, उन्हीं लोगों ने स्वार्थता में लिप्त होकर धार्मिकता छोड़ दी। सब कुछ मेरा होना चाहिए, यही लालच मनुष्य को धन, मोह, दरिद्रता और युद्धों की ओर धकेलता है। इस संसार की वस्तुओं की रचना ईश्वर ने सब लोगों के लिए की थी। जब इस बात को भूलकर सब लोग स्वार्थी बने, तब ही इस संसार में लोग धनी और दरिद्र बने। गरीब तो अपने अधिकार से बार बार वंचित होकर ज्यादा गरीब बन गए। अधिकार से वंचित हुए और शोषण के शिकार बने गरीबों के संरक्षण के लिए ईश्वर ने यह आदेश दिया, ना तो अपने पड़ोसी की पत्नी का, ना उनके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उनके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का लालच मत करो। ये हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 20 वाक्य 17 में। अब हम देखेंगे धन का लोभ के बारे में। चोरी, लूट, धोखा आदि पापों का मूल कारण है धन का लोभ। इसे मना करते हैं 10वीं आज्ञा। 10वीं आज्ञा कौन सा है? पराये धन का लालच मत करो। धन अर्जित करने की इच्छा अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जो अपना नहीं है, दूसरों के हक का है, उस पर अन्याय रूप से लालच करना पाप ही है। जिसे पैसा प्रिय है, वह हमेशा और पैसा चाहता है। जिसे संपत्ति प्रिय है, वह कभी अपनी आमदनी से संतुष्ट नहीं होता है। उपदेशक ग्रंथ में अध्याय 5 वाक्य 9। धन बटोरने की असीम इच्छा है धन का लोभ।
इस इच्छा के साथ साथ धन से प्राप्त अधिकार और सुख का मोह भी हो सकता है। 10वीं आज्ञा इसको मना करती है। धन कमाना। धन अर्जित करने की क्षमता मानव को ईश्वर ने ही प्रदान किया है। न्यायोचित मार्ग से धन अर्जित करके आज और कल के जीवन को सुरक्षित बनाने का अधिकार हर व्यक्ति को है। अपने परिश्रम और रोजगार से अपनी जरूरत के लिए पैसा कमाने का अधिकार और कर्तव्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, लेकिन अन्याय और अनावश्यक ढंग से धन बटोरना घोर अपराध है, पाप है। ईश्वर ने संसार को सब लोगों के लिए बनाया है। उसमें जब एक व्यक्ति अपने ही सुख और सुरक्षा को महत्व देकर जीवन बिताता है तो वह पाप बनता है। अब हम देखेंगे लालच। अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं से ज्यादा वस्तु, अधिकार, पद आदि को अपनाने की इच्छा है लालच। दूसरों के अधिकारों का हनन न करना। 10वीं आज्ञा हमें यही सिखाता है। स्नेही पिता ने सब लोगों के लिए जिन सृष्ट वस्तुओं की रचना की, उनका अनुभव करना हर मानव का हक है। मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उचित तरीकों से धन अपना सकता है। इन अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे धन के लोभ के नियंत्रण में मददगार पुण्य कैसे हम धन के लोभ से मुक्त हो सकता है। उसमें पहली है दरिद्रता की भावना। अपनी खुशी भौतिक वस्तुओं की समृद्धि में न पाकर ईश्वर पर आश्रय रखते हुए जीना है सुसमाचार पर आधारित दरिद्रता। ईसा कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। यह हम पढ़ेंगे संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 3 में। जो दरिद्रता की एक भावना रखते हैं वे ईश्वर की महिमा और दूसरों की भलाई के लिए अपने ईश्वरीय दानों का उपयोग करते हैं। देखो मितव्यय। धन संपत्ति का सच्चा मालिक ईश्वर है, मनुष्य केवल प्रबंधक है। यह धारणा ही मनुष्य को मितव्यय की प्रेरणा देती है। अपनी जरूरत के अनुसार संपत्ति का इस्तेमाल करना और बाकी दूसरों की उन्नति के लिए व्यय करना, यही मितव्यय है। आज ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है कि जो अपने इच्छानुसार अपनी संपत्ति का व्यय करता है। ऐसे एक दशा ईश्वर नहीं चाहता है। धनी को यह विवेक होना चाहिए कि धन ईश्वर की देन है। कितना प्यारा पिक्चर है ना बच्चों। उदारता। यदि संसार में केवल एक ही व्यक्ति दरिद्र हो तो इसका कारण मैं भी हूँ, यह समझकर उस स्थिति को सुधारने में हमारी मदद करता है उदारता का पुण्य। अपनी सुविधा तजकर दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने का सद्भाव है उदारता का नींव। जो बांटने का मनोभाव रखता है वही उदारता से व्यवहार कर सकता है। हमारा जितना भी संपत्ति है वो दूसरे के साथ बांटने का हमें मन होना चाहिए। और है तृप्ति। जो कुछ ईश्वर देता है उसे संतुष्ट रहने का मनोभाव है यह। अपने जीवन की जरूरतों के लिए ईश्वर ने जो दान दिए हैं उनसे खुश रहना और जो अपने पास नहीं है उनके प्रति दुखी न होना, यह मानसिक स्थिति है तृप्ति। ईश्वर का राज्य और उनकी धार्मिकता ही सर्वप्रथम है। यह विश्वास हमारी मदद करता है। प्रकृति का संरक्षण हमारा हर एक का कर्तव्य है।
मनुष्य इस संसार का मालिक नहीं, प्रबंधक मात्र है। केवल स्वार्थता के लिए प्रकृति के संसाधनों को अपने अधीन नहीं करना है। इन संसाधनों पर सबका हक है। मनुष्य को प्रकृति का शोषण नहीं, बल्कि उसका संरक्षण ही करना चाहिए। जिसने प्रकृति के संरक्षण को अपनी जीवन शैली बनाई है, वही जल, हवा, पेड़ आदि वस्तुओं को नष्ट न करते हुए केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग कर सकता है। यही हमारा कर्तव्य है। 10वीं आज्ञा कौन सा है? पराये धन का लालच मत करो। इसका महत्व आज बहुत प्रासंगिक है। आज दरिद्रों से अधिक धनी ही दूसरों के अधिकारों और धन संपत्ति पर नजर रखते हैं। 10वीं आज्ञा हमें याद दिलाती है कि लालच नहीं करना चाहिए। हम यह याद रखें कि सबके सब समान है और धन ईश्वर की देन है। हम सबके सब समान है और धन ईश्वर की देन है। मूल पाप किसे बोलते हैं बच्चों? जिन पापों से दूसरा अन्य पाप होती है उसे मूल पाप कहते हैं। मूल पाप कितना है? 7। अगर हम मूल पापों से अलग रहे तो हमारे जीवन में अन्य पापों का असर भी कम पड़ेंगे। तो हम देखेंगे मूल पाप और उनके विरुद्ध पुण्य कौन कौन सी है। पहला है घमंड। घमंड से विरुद्ध आने वाला पुण्य है नम्रता। दूसरा पाप है धन का लोभ, उनके खिलाफ पुण्य है उदारता। तीसरा पाप है कामुकता, उसके विरुद्ध पुण्य है शुद्धता। और चौथा पाप है क्रोध, क्रोध के विरुद्ध पुण्य है सहनशीलता। पांचवा पाप है पेटूपन, अपना पेट भरने का, बस दूसरे के बारे में चिंता नहीं, उसके विरुद्ध पुण्य है आत्मसंयम। छठवां ईर्ष्या, ईर्ष्या के विरुद्ध पुण्य है भाईचारा। और सातवां आलस्य, अपनी जिंदगी में काम करने को अपने को इच्छा नहीं है, उसका आलस्य बोलते हैं। उसके विरुद्ध पुण्य है परिश्रम। तो हम ये 7 मूल पाप और उसके विरुद्ध होने वाले पाप पुण्यों के बारे में पढ़ना है, हमारे जीवन में उसको उपयोग करना है। अब हम ईश वचन पढ़े और वर्णन करेंगे। संत लूकास रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 13 से 21 तक। और हमारा मार्गदर्शन के लिए पवित्र वचन दिया है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। हम देख लिया है संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 3। ये हफ्ते हम करना है क्या? मूल पापों और उनके विरुद्ध पुण्यों को कंठस्थ कीजिए। मेरा निर्णय, मैं अपनी क्षमता के अनुसार अपने चर्च के गरीब बच्चों की मदद करूंगा या करूंगी। अभी प्रश्नोत्तर। पहला, प्रभु की 10वीं आज्ञा कौन कौन सी बातों को मना करते हैं? दूसरा, 10वीं आज्ञा के विरुद्ध पाप कौन कौन से हैं? तीसरा, लालच किसे कहते हैं? चौथा, धन के लोभ के नियंत्रण में कौन कौन सी पुण्य मदद देते हैं? और 5वीं, 10वीं आज्ञा का महत्व आज बहुत प्रासंगिक है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इसका उत्तर ढूंढकर अपने किताब में लिख लिए और पढ़िए और हमारे जीवन में 10वीं आज्ञा का पालन कीजिए। ठीक है? तो बच्चों, हम प्रभु की 10 आज्ञाएं पढ़ चुके हैं। हमारे जीवन में कैसे अपनी जीवन निभाना ये हम सीखा है। तृप्त होकर प्रभु के साथ रहने की आशीष हम प्रभु से मांगे। ठीक है? हे प्रभु परमेश्वर,
आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपसे दिए हुए सब वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में हमेशा तृप्त होने की कृपा हमें दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।